Hello everyone and welcome back to Love English. I hope you're all ready without any tension to learn the tenses. मुझे ये आशा है कि आप सब यहाँ पर आज टेंसेस सीखने के लिए आए हैं एंड आई एम श्योर दैट यू आर विदाउट एनी टेंशन. सारा टेंशन घर पे भूल के आ गए हैं और अब हम सीखते हैं टेंसेस. ऑलराइट, सो अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपने ये सुना होगा मुझे कहते हुए कि टेंसेस जो हैं ये वर्ब्स पे डिपेंडेड है. अगर आपको वर्ब्स आ जाए तो टेंसेस आपको सीखने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी. ओके, आवर टेंसेस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वर्ब्स and if you know all the verb forms of English, then you do not have any dependency on anything else. I think you will be totally independent to make your own sentences and you will be able to speak fluently in English. So very important note here is that you need to know the verbs well. So verbs are extremely important for you to know before we get into tenses. Okay, in the last video I had explained to you that there are two different categories of subjects. Okay, the first category is I, you, they, we, and the second category was he, she, it. The formulas also for both will be different. Okay, now what are we talking about today? We are talking about the simple present tense, यानी साधारण वर्तमान काल की बातें हम कर रहे हैं. Now साधारण वर्तमान काल क्या है? साधारण वर्तमान काल वो चीज़ें हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में होते रहती है. थिंग्स दैट अकर इन आवर डेली लाइफ्स, इन आवर रूटीन्स, रियलिटीज़ एंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ. इट मे बी डिपेंडेंट ऑन आवर स्केड्यूल्स, इट मे बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू आवर प्रेजेंट. Okay, so I'll take you through a lot of examples for you to understand it in a better way. All right, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला देखना है. और जैसे मैंने बोला था, 2 और 2 मिलाते हैं जो 4 ही होगा. 2 और 2 कभी भी 5 नहीं हो सकता. Similarly, when you follow the formulas here which I tell you, you are always going to be correct. You need to follow the proper word order. You need to follow the proper rules of grammar. And there you go. That is all you need to do. और आप एकदम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे without any defects or without any faults. Okay? And अगर शुरुआत में आप गलतियाँ करते भी हैं, do not worry. That is a learning phase. Everybody has to fall down to rise up in life, right? So you make mistakes, but that mistake should not pull you down. You should not get upset or get worried that, oh, I cannot speak in front of people because people laugh at me, people make a mockery of me. Don't worry. People will do it at any cost. No matter how well you're doing in life, they will always try to bring you down. So don't worry about people. What I would want you to do is be brave enough there to go and speak in front of people the way that you want to. Okay? But I assure you that once you start following the formula in the proper way that I'm telling you, you will definitely be able to form proper sentences. Alright, so let's start now. So अब इसका formula क्या होगा और हम इसको कब use करते हैं? हम simple present tense जो है तब use करते हैं जब हमें हमारे जीवन के बारे में कुछ चीज़ें बोलनी होती है, जैसे कि सूरज. ठीक है, सूरज रोज़ सुबह उगता है. सूरज कभी ऐसा हुआ है कि नहीं उगा है? नहीं होता, राइट? सो ये हमारे जीवन की एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि सूरज रोज़ सुबह उगता है. तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. सूरज को लेकर और एक बात है कि सूरज जो है वो हमेशा पूरब से ही उगता है. कभी आपने उसे पश्चिम से उगते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन द सन राइज फ्रॉम द वेस्ट? नो, द सन ऑलवेज राइजेज फ्रॉम द ईस्ट. तो ये और एक सच्चाई है उसकी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तभी भी यूज़ करते हैं जब हम किसी को बोलते हैं कि मैं मुंबई में रहती हूँ. ओके, तो मैं ऐसे बोलूँगी आई लिव इन मुंबई. आई लिव इन मुंबई. तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बोली या रियलिटी बोली, आई लिव इन मुंबई. अगर मुझे अपने रूटीन या शेड्यूल के बारे में बात करनी है, अपने स्केड्यूल के बारे में बात करनी है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ आई वेक अप एट 6 AM. मैं सुबह 6 बजे जागती हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं बोलती हूँ कि मैं जागती हूँ, सूरज उगता है,
मैं रहती हूँ, ऐसे सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे जुड़े हुए हैं मेरे साधारण वर्तमान काल से, द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऑलराइट, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को बनाते कैसे हैं ये देखें। मैंने जैसे आपको बोला है कि दो कैटेगरीज में इसे बांट लो, एक है आई यू दे वी, दूसरा है ही शी इट। ओके, और हमारे जो सेंटेंसेस बनते हैं वो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हम बनाते हैं, राइट। वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, सम में बी एन अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होते हैं और उनमें हम कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते। दूसरे सेंटेंसेस होते हैं, द अदर सेंटेंसेस कैन बी नेगेटिव सेंटेंसेस वेयर वी यूज नो और नॉट। ओके, नकारार्थी भी सेंटेंसेस या नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम नो या नॉट लगाते हैं। तीसरे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रश्नार्थी या प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। So there are three different types of sentences that we are going to see, and we are going to see how we are going to use a formula in all of this. Fine? All right, so let's go to our affirmative sentences first. अब एक रूल आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी हम कोई affirmative sentence बनाते हैं उस समय जो हमारी दो कैटेगरीज हैं आई यू दे वी, इसमें जो मेरा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सिंपल जो मेरा फर्स्ट फॉर्म है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ऐसे इस तरह से इसकी रचना होगी। दिस इज हाउ यू क्रिएट द सेंटेंस। लेकिन आई यू दे वी के अलावा जो ही शी इट है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं मेरे बाकी के, उनके साथ जो मेरा वर्ब है, ओके, जो मेरी क्रिया है, क्रिया के साथ मुझे एस लगाना आवश्यक है। आई नीड टू ऐड द एस व्हेन आई स्पीक अबाउट ही शी और इट। ओके, एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला आई लिव इन मुंबई, फाइन। लेकिन मैं जब ही के बारे में बात करती हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती ही लिव इन मुंबई, दैट इज़ रॉन्ग। मुझे बोलना पड़ेगा ही लिव्स इन मुंबई, शी लिव्स इन मुंबई, इट लिव्स इन मुंबई। ओके, तो मुझे एस लगाना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। अगर मैंने एस नहीं लगाया तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आई यू दे वी लिव इन मुंबई, ही शी इट लिव्स इन मुंबई। ओके, मेरा जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब in the first form, okay, verb in the first form plus object for I, you, they, we, and subject, the verb in the first form plus s and the object for he, she, it. This was about an affirmative sentence. ठीक है, ये मैंने एक आपको सकारात्मक सेंटेंस के बारे में बोला। लेकिन हम नकारार्थी या नेगेटिव सेंटेंसेस भी तो बोलते हैं, तो उसका क्या। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस होगा, वो वर्ड है डू, एंड दूसरा वर्ड है इसका ही साथी डज। डू जो है ये वापस आपने दो कैटेगरीज तो बना लिए हैं, अब ये कैटेगरीज को यहाँ पर रट्टा मारिए। ओके, जस्ट मेमोराइज दीज टू कैटेगरीज बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी फॉर यू इन ऑल योर टेंसेस। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है मेरा आई यू दे वी, इसके साथ मुझे लगाना है डू, एंड ही शी इट के साथ मुझे लगाना है डज। ओके, we are only talking about the simple present tense here. Okay, do not confuse yourself. So I, you, they, we, do, he, she, it, does. इसको भी एक रट्टा मारिए, इसको भी मेमोराइज कर लीजिए। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे नकारात्मक, ये देखिए। I do not live in Delhi. I do not live in Delhi. We do not live in Delhi. You do not live in Delhi. Okay? But when we talk about the singular, we say he does not live in Delhi. Okay? Or she does not live in Delhi. तो आपने देखा दोनों का फ़र्क। मैंने I, you, they, we के साथ do लगाया और not लगाया, और he, she, it के साथ does लगाया और not लगाया। अब बोलने में थोड़ा सा कभी कभी डू नॉट, डज नॉट काफ़ी लंबा होता है, तो हमने क्या किया है, इसको इंग्लिश में वी हैव
कॉन्ट्रैक्टेड देम, हमने इस वर्ड को छोटा कर लिया है, और डू नॉट को हम बोलते हैं डोंट, ओके, एंड डज नॉट को हम बोलते हैं डजंट, डजंट, ऑलराइट। सो आई डोंट लिव इन दिल्ली, शी डजंट लिव इन दिल्ली, ओके। सो आप देखिए, आप जब बोलते हैं तो ये आपके मुंह से फटाफट निकलता है। ही डज नॉट लिव इन दिल्ली की जगह पे ही डजंट लिव इन दिल्ली इज मोर स्टाइलिश एंड इट इज़ बेटर टू स्पीक, फाइन। तो आप भी यही अपनाइए। लेकिन जब आप कोई फॉर्मल मेल्स भेज रहे हैं या कोई किसी को फॉर्मल लेटर्स भेज रहे हैं, देन प्लीज़ यूज़ द फुल फॉर्म्स, ओके, बट अदरवाइज आई थिंक यू कैन यूज़ द शॉर्ट फॉर्म्स इन एवरी अदर प्लेस, फाइन। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में हम शुरू में डू या डज लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है, उसके बाद में हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद मुझे लगाना है ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी हो सकता है कि आप नेगेटिव क्वेश्चंस हो सकता है कि पॉजिटिव क्वेश्चंस हो। एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। उसी समय आप ये भी पूछ सकते हैं, डज शी लाइक मिल्क, डज शी लाइक मिल्क, क्या उसे पसंद है, ओके। अगर आपको इसको नेगेटिव में बोलना है तो आप बोलोगे डू यू नॉट लाइक मिल्क, डू यू नॉट लाइक मिल्क। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, डू यू लाइक मिल्क एग्जाम्पल। तो आपने पहले क्या किया, डू लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो वही वैसे ही आएगा। एग्जाम्पल, क्या उसे खेलना पसंद है, डज शी लाइक टू प्ले। तो पहले आया आपका डज, उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये सेंटेंसेस बनाएं तो मुझे लगता है आप कहीं भी गलतियां नहीं करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू मेमोराइज, और दिस इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्मूला दैट यू नीड टू प्रैक्टिस सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में और एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द यानी कोई भी आपके वर्ब्स अगर CH या S ऐसे वर्ड्स में अगर ख़त्म होते हैं, तो जब आप इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो आपको ES लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आई मिस द बस, आई मिस द बस यानी मैं बस मिस करती हूँ, ठीक है। नाउ इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर मुझे ही शी इट के बारे में बात करनी है तो मैं बोलूँगी शी मिसेज हर बस। साउंड देखिए, ऐसे आएगा, मिसेज हर बस, ओके। मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ मिस, बिकॉज एस के साथ और एस लगा के वो कौन सा साउंड आएगा। सो दैट इज़ वाई आई नीड टू से शी मिसेज हर बस। सिमिलरली जब मैं ही के बारे में बात करूँगी तो मुझे ये बोलना पड़ेगा ही ब्रशेज हिज टीथ, ही ब्रशेज हिज टीथ, ओके। सो आपने क्या किया, ब्रश आया, लास्ट में SH था, तो SH के साथ आपको ES लगाना है। जब आप ES लगाएंगे तो आपका वो वर्ड बराबर रहेगा, ओके। तो फॉर्मूला ये था कि आप सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, along with the first form for the singular subject you need to add an S or a ES depending on your verb. If your verb ends with a S or a CH or a SH, then you need to add E and S, both the letters, and S is not enough. Many people make mistakes in simple present tense when they say I am eating, okay. जब उनको ये बोलना होता है मैं खाती हूँ, वो बोलते हैं I am eating। तो यहाँ पर आपने गलती की। आपको जब हिंदी में किसी भी वर्ड के अंत में ता ती ते लगता हुआ सुनाई देता है, एग्जाम्पल, मैं चाय पीती हूँ, वो खाना खाता है, हम सब खेलते हैं, तो ये ता ती ते वाले वर्ड्स आए तो आप तुरंत समझ जाइए, यहाँ पे एक बल्ब ऐसे जलना चाहिए, आप समझ जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी ING नहीं लगेगा।
अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ing लगाया मतलब आप इंडियनिज्म यूज़ कर रहे हैं, आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपका ग्रामर गड़बड़ है. ओके, सो ऑटोमेटिकली योर सेंटेंस गोज फॉर अ टॉस. You are grammatically incorrect if you use ing in the simple present tense. All right. So I think these are the few things. If you really take care of these things, you will be able to speak very well in English without making any mistakes in grammar. Fine. So these were few rules that I thought I need to tell you. All right. So you just need to remember a few tips like this, and I'm sure that is all you need to know for your simple present tense, and you'll be able to speak impeccably fine. In some time you will be the most fluent person. The only thing is practice is the key. Try to speak to everybody around you in English as much as possible, because देखिए आप कोई भी भाषा अगर बोल रहे हैं, इंग्लिश आपके लिए हो सकता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. वैसे भी इंडिया में हमारा इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. इसके अलावा हम हिंदी बात करते हैं, हम मराठी बात करते होंगे, हम गुजराती बात करते होंगे, हम राजस्थानी बात करते होंगे या मारवाड़ी बात करते होंगे. बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. इन सब के बाद हमने इंग्लिश सीखी है. तो इसीलिए क्या हुआ है कि इंग्लिश अभी हमारे में इतना ज़्यादा नहीं है. और अगर हम बोलें कि रातों रात या कहीं आपको कोई बोल देता ना कि आप आइए 2 महीने में मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगी, तोते की तरह आप बोलने लगोगे, तो ये सब बकवास है. आई डू नॉट अग्री विद दैट, बिकॉज एनी लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्नड इन 2 months. इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. हो ही नहीं सकता कि 2 महीने में आपको सब कुछ आ जाए, बिकॉज 2 महीने में तो आप उसके साथ आपका रिलेशन होगा, आप उसको जानने लगेंगे, वो आपको जानने लगेगा, उसके बाद में आप एक दूसरे को अपनाएंगे. सो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, इट्स अ लेंदी प्रोसेस. ओके, बट द की हियर अगेन इज प्रैक्टिस अ लॉट. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल फॉल इन लव विथ इट. द मोर यू लव इट, इट विल लव यू बैक. और एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश को एक बार आपसे प्यार हो जाएगा ना, इंग्लिश आपको कभी नहीं छोड़ेगा. सो दैट इज़ वाई प्लीज़ प्रैक्टिस अ लॉट, fall in love with it, let it fall in love with you, and then you see how the magic unfolds. It'll be amazing. All right, so just keep following my videos, follow all these tips, and I'm sure you will speak very well very fast. And even if you're making mistakes, that's okay in the beginning, don't worry, but try to not make that mistake again. Repeatedly don't make the same mistake. Try to be conscious now that okay, simple present tense मुझे क्या क्या सिखाया गया था, मैंने क्या क्या रूल्स देखे थे, इसको अब मुझे अपनाने हैं. That is all you need to do, and I'm sure you'll be fine. All right, so thank you so much for your time. Thank you so much for watching my video, and I don't need to tell you this, but still please do like my video, please share my video with everybody, please comment on my videos, and I think please keep watching it as much as you want. Whenever you're doing your work or whenever you need to understand the rules, it will definitely help you. It will be as a substitute for you. All right, so thank you very much once again for being with me, and I'll see you again. And you know that we are in the series wherein we are doing all our tenses, so please watch the next video because you'll have a next tense there. All right, so see you soon then. Take care and have a lovely week. Bye.